I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। तो माशाल्लाह से रौनक आ गई। वैसे तो कहते हैं कराची रोशनियों का शहर है, और वैसे रौनक आ गई है रबी अव्वल की। रबी अव्वल जैसे स्टार्ट हुआ, चांद नजर आए, तो माशाल्लाह से जगह जगह पे रोशनियां ही रोशनियां फैल गई माशाल्लाह। गली कूचे सज गए, और ये इतना अच्छा त्यौहार होता है। मुझे तो अच्छा ही लगता है, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है, यानी कि बहुत ही बस अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है पता है? अक्सर ना मुझे जो हिंदुवाली होती है ना, तो उसमें भी लोग घर वगैरह सजाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे बहुत ही फेवरेट त्यौहार है, ठीक है ना। अब लोग इसको गलत नज़र से मत लेना, ठीक है, क्योंकि एक तो इनकी जो दिवाली होती है वो, और दूसरी इनके घर में जब शादी होती है ना, पूरा घर फूलों से सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं। तो इस तरह रबी अव्वल में ना माशाल्लाह से ना लगाने वाले लोग भी ना लाइटिंग करते हैं, लगाते हैं। किसी की जितनी भी हैसियत होती है, कोई एक सेवर लगाता है, तो कोई पूरी बिल्डिंग सजाता है। और माशाल्लाह से जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ, जिस गली में मैं रहती हूँ, माशाल्लाह वो पूरी गली पे पूरी लाइटों से सजी हुई होती है। तो आज बच्चे काफ़ी कह रहे थे कि पापा लाइटें दिखाने चलो, लाइटें दिखाने चलो। तो पहले तो पापा इनके कहते हैं कि मोहल्ले में लाइटें लगी है वो देख लो, लेकिन फिर ले जाते हैं। बस भाई हमें अच्छा लगता है, कुछ भी हो, ज़िंदगी जीने का हर किसी का एक तरीका होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, बल्कि कह ही रहते कल कि ये तो फजूल खर्ची होती है, सब कुछ नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या है यहाँ पे इस आवाम को, बस कुछ भी होता है ना, कोई ज़्यादा पैसे वाला बंदा देखेंगे तो बोलेंगे तुम यहाँ पे फजूल खर्च कर रहे हो, तुम पाकिस्तान टूर जा रहे हो, तुम उम्रे कर रहे हो, यहाँ तक कह देते तुम उम्रे कर रहे हो, तुम्हारा तो उम्रा होगा नहीं, क्योंकि गरीब भूखा बैठा हो। यहाँ पे गरीबों के पेट में जितना भी डालते जाओ ना, जितना भी डालते जाओ, गरीब का पेट नहीं भरेगा, और ना ही कभी गरीब खत्म होंगे।
तो मैं तो बस सबसे ये कहूँगी कि गरीबों को देना ही बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, सच्ची बात कह रही हूँ मैं तो पता है क्योंकि ना कोई गरीब गरीब नहीं है यहाँ पे, तो समझ ही नहीं आती है कौन लेने के लिए मुस्तैद है कौन नहीं है। तो यहाँ पे तो कोई फंसा है नहीं फंसा है, सही मायने में फंसा है हमारे आपके जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो तो ना किसी से ले सकते हैं तो ना ही, गरीबों की तो औकात हो गई है, गरीबों की आदत हो गई। हालांकि गरीब गरीब नहीं है, मांग मांग के ना तो ये तो इतने पैसे वाले हो गए, लेकिन फिर भी ना एक आदत सी हो जाती है तो इनकी तो बिल्कुल। अब कल भी कोई लेडी थी ऐसे ही कह रही थी कि ये तो ना, तो माशाल्लाह से कल फर्स्ट डे था रबी अव्वल का, तो बहुत ज्यादा रौनक थी, कोई न्याज़ें बांट रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो बस किसी ने कहा होगा कि ये सब कुछ तो फजूल है, ऐसी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। इससे तो बेहतर है किसी गरीब के घर में आटा पहुंचा दो, किसी गरीब को चावल दिला दो। अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जिए, हम अपनी खुशी से नहीं जिए, ये तो गलत बात होती है, क्योंकि यहाँ तो गरीबी मिटने वाली है ही नहीं, बल्कि गरीबी बढ़ती जाती है। जितना आप जिस बंदे को दो ना, अब फर्ज कर ले किसी को मैंने एक बार किसी को दिया, अब उस बंदे की तो ना आदत लग गई, अब रमजान आ रहा नहीं होता उससे पहले ना वो बंदा आके मुझे पकड़ लेता है कि यार तुमने फिर से मेरी हेल्प करनी, तुमने पिछले रमजान में दिया था तो मैंने बिल भरा था, अब तुम इस रमजान में दोगी तो मैं फ्रीज लूंगी। ये गरीबों के काम है, सुन लो। अब पाकिस्तान टूर पे जाने का हम सोच रहे होते तो वही गरीब आके खड़ा हो जाता है, यार तुम पाकिस्तान टूर जा रहे हो तो थोड़ी सी हमारी मदद कर दो, ये कर दो। अब वो अपने घर में शादी भी कर रहा है तो फिर से आ जाते हैं, आज बहन की शादी, आज ये दे दो, आज बच्ची, हमारे गरीबों को देना बंद कर दो, उस गरीब को दो। बल्कि मैं तो कहती हूँ पैसे तो बिल्कुल भी किसी को ना दो, कि जो हमें लगे, जो खुद से कभी कभार इंसान को खुद के दिल को भी लगता है कि यार वाकई दिल करता है, तो हम तो उस लोगों को देते हैं जिसका हमें दिल करता है। मैं तो मांगने वालों को बिल्कुल भी नहीं देती, बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ तो बस फटे फटे। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी इसमें कोई फखर करने वाली बात नहीं है, दुख की बात है कि हमारे जो है ना मुल्क को ना आलमी सतह पे ना, पता है, फकीर कहते हैं, मांगने वाला कहते हैं, और वाकई में हम क्या, हमारे मुल्क के अवाम क्या, यहाँ तक कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहने पे मजबूर है। हमारे जो वजीर आजम साहब है वो भी कहीं भी जाते तो कहते हैं यार, तो अभी की बात है, शहबाज शरीफ ने कहा होगा कि मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी जो तुम दे सकते हो दे दो। तो हमारी हालत इस तरह हो गई और हमारी आवाम की हालत भी इस तरह हो गई, यहाँ तक कि आजकल तो हम कहीं भी खड़े नहीं हो सकते ना, दूध वाले की दुकान पे, दूध वाले की दुकान पे जाओ तो बच्चियां आगे मांग रही होती है अपने बच्चे के लिए दूध ले लो, हमें भी आधा किलो दूध दिला दो। आधा किलो दूध कितने का पता है? 80 रुपए का आधा किलो दूध है, 80 रुपए का आधा किलो दूध है। दही ना माशाल्लाह से 60 रुपए की पाव है, तो इनको दिला दे, अपने बच्चों को खिलाए, तो बात तो समझ ही नहीं आती है भाई। लोग तो बस कह रहे होते, हमें तो बहुत ज्यादा लोग ये भी कह रहे होते कि यार तुम तो समझ नहीं, तुम्हारे पास तो किस बात की पैसे की कमी। तो मैं आप लोग को मेरे बारे में सच बताऊंगी, मेरे पास होता है चाहे नहीं होता है, लेकिन ना मेरी आदत है ठीक ठाक से निकलना, अच्छा पहनना, अच्छा मुंह बनाना, बिल्कुल भी इस तरह नहीं करती कि नहीं हमें दे दो। फटे हुए कपड़े नहीं पहनते भाई, पहनते हमें नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम बिल्कुल मांग नहीं सकते। और हमारे जैसे कितने ऐसे लोग हैं, हमारे पास तो फिर शुक्र है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में नहीं होता है, बेचारे फिर भी नहीं मांग सकते, मांगते हुए शर्म आती है। तो अल्लाह ताला तो बस मैं तो कहूँगी कि सबको बचाए, और कोशिश यही कहूँगी कि जो मांगता है मांगने की आदत निकाल दो, ऑटोमेटिकली मेहनत करो, अल्लाह ताला खुद देता है, ठीक है ना। मांगना बंद कर दो, किसी पे आस करना छोड़ दो, तो फिर अल्लाह आपको ऐसा नवाजेगा, ऐसी ऐसी जगह से नवाजेगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बैठे बैठाए कोई भी नहीं देता। और जाहिर सी बात है जो एक बार देता है वो 100 बार हमारे बारे में कहता भी है यार हमने तो उसकी मदद की थी। तो बस माशाल्लाह से रबी अव्वल आ चुका है, तो लाइटें लग चुकी है चारों तरफ जगमगाहट है। तो बच्चे आज जिद कर रहे थे कि मम्मा आप भी लाइटें लगाओ, पिछले बार भी अपने व्लॉग बनाया था लाइटें लगाई थी, अभी भी लाइटें लगाओ। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, हम ना एक बार अपनी बालकनी में लाइटें लगाते, फिर हम उन लाइटों को नहीं निकालते, जब तक हम उन लाइटों को नहीं निकालते, जब तक वो लाइटें खराब नहीं हो जाती। तो कुछ लाइटें खराब हो चुकी है, तो अब देखते हैं कि जब टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए लाइटें लाऊंगी और मैं भी अपने घर में जगमगाहट करूंगी। इससे कुछ होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, अलबत्ता दिल की खुशी है और बस हम मनाते हैं, हम तो हर ही त्योहार मनाते हैं। अब हमारे यहाँ पे खुद में आपस में लड़ रहे होते हैं, शिया लोग कहते हैं कि त्योहार मनाना गुनाह है, इस दिन हुजूर की विलादत हुई थी या पता नहीं क्या हुआ था, कुछ पता नहीं, और सुनी गए होते हैं कि शिया जो करते हैं वो गुनाह है। तो इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ो, गुनाह है नहीं है हमें कुछ भी नहीं पता। वारियत पे वैसे भी मुल्क तबाह हो चुका है, तो और मुल्क को तबाह मत करो, ये छोड़ दो। हम तो बड़े लोगों को तो हम नहीं कह सकते, शायद जो मेरे गैदरिंग में हो जिनको मेरी बात समझ में आए तो बिल्कुल कहना छोड़ दो यार। आप लोग के घर पे लोग न्याज लेके आ रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हम सुन्नियों की न्याज नहीं खाते, हम शियों की न्याज नहीं खाते, तो खुदा इन चीज़ों को छोड़ दो और जो त्यौहार आ रहा है उसको खुशी से एंजॉय करो। और आप भी अपने घर में लाइटें लगाई, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी लाइटें लगाऊंगी, ज़रूर लोग बनाऊंगी।
तो अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।